था ना, हेलो, Biot-Savart's K law. value, K Yes, value. Biot-Savart's law is what? The magnetic field due to circuit element dB is what? K ideal sin theta, K ideal sin theta by r square. ये हम लोग derive किए थे. And the value of K in SI is what? Mu naught by 4 pi, and in CGS it is what? 1. Understand this? ये दो किए थे. तो अभी इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे. वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ. राइट डाउन. वेक्टर फॉर्म ऑफ, लिखो, वेक्टर फॉर्म ऑफ Biot-Savart's law. Biot-Savart's law. Vector form of Biot-Savart's law. What is the vector form? Try to understand this. So dB is equal k ideal sin theta by r square. मुझे देखो किसको वेक्टर करना है. आई तो वेक्टर कभी नहीं होगा. dl एंड r वेक्टर होगा. समझ में? dl एंड r वेक्टर होगा. तो इसलिए क्या करना है मुझे, db को जो वेक्टर करना है, dv को वेक्टर करना है, तो k i dl व्हाट, r यहीं पे एक मल्टीप्लाई करूंगा, r डिवाइड करूंगा वह इनटू sin थीटा एंड r कैप. एक यूनिट वेक्टर अगर लिखूंगा, ये वेक्टर में कन्वर्ट होगा. इफ विल मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर देन, अरे स्क्रीन नहीं आ रहा है. हेलो, नहीं सर, स्क्रीन ही सर, दिखाई नहीं दे रहा है. हाँ. Yes sir, no. ओके. अभी दिखाई दिया? हेलो. यस सर. अच्छा देखो, फिर से बोल रहा हूँ. देखो अभी स्क्रीन क्लियर है? ओके. ऑलरेडी आई हैव रेड Biot-Savart's law. This is what dB is equal k ideal sin theta by r square. Now vector form of Biot-Savart's law लिखो. Vector form of Biot-Savart's law. वेक्टर फॉर्म ऑफ Biot-Savart's लॉ. जैसे कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म दिया था, Biot-Savart's लॉ का वेक्टर फॉर्म लिखेंगे. तो dB is equal k ideal sin theta by r square. I is a scalar quantity. dl can be treated as vector, r can be treated as vector. Therefore क्या करना है मुझे? Now what you have to do? You have to multiply r and divide r and just multiply by r cap. अगर r cap multiply करोगे तो ये जो स्केलर है लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर में कन्वर्ट होगा. समझ में आ रहा है? आर कैप अगर मैं मल्टीप्लाई किया, आर कैप यूनिट वेक्टर इन राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बिकम व्हाट? dB will become vector quantity dV vector. Clear what? Now what will happen? You see, so dB vector is equal k ideal r sin theta r cap divided by r cube. Now you see this dl r sin theta r cap means what? dl cross r. अरे a b sin theta n cap is what? अरे a b sin theta n cap is what? a cross b na. Therefore this is now k I dl cross r divided by r cube. This is what the vector form of Biot-Savart's law. This is what the vector form of Biot-Savart's law. Is it clear? Vector form of Biot-Savart's law. K ideal cross r by r cube. A cross b is what? A b sin theta n cap. याद है ना a cross b? या भूल गए? अरे याद है ना a cross b? Sir, R. Yes. बोलो. Sir, normal R. How in the numerator? Numerator Normal is r. R. K ideal r sin theta by r cube. R magnitude. I can write r magnitude like this or r simply r. Understand this? अरे r magnitude can be written as r ना, like this. Spandan, अरे r magnitude is Yes same sir, as but there r is ना. no R in the numerator. Numerator, therefore I am just multiplying r and divide r. As there is no numerator in r, r is not in numerator, therefore I am multiplying r and dividing r. Understand this? Therefore denominator becomes r cube. Is that clear? Understand this, Spandan? In order to write the dl r sin Yes sir, theta, yes, to convert to vector, A we cross have B, to yes, multiply, sir, multiply R and cap divide by R. R. R cap, no, I have to just what? Yes, sir, as sir. as the 1 minute, let me finish this and you'll ask the question. Here you need R, but there is no R, therefore I am dividing R and multiplying R. Understand? Multiplying R, dividing R. Understand this? Now ये तो स्केलर हो गया. Yes, R sir. by R तो कोई वैल्यू नहीं है, समझ में? बट राइट हैंड साइड को मुझे वेक्टर करना है, तो इसको ये जो वेक्टर का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया R कैप,
therefore left hand side will become vector quantity. अभी समझ में है? अरे किसी भी स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए इसी का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करो, तो r कैप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू वेक्टर dv. समझ में आ रहा है स्पंदन? स्पंदन, now Okay, ask sir. the Yes. question. Now ask the question. Ask the question. Yes, Clearly sir. ask the question. Clear? Got the answer? Yes, yes, sir. Clear. Okay, very good. Now write down this. So this is what the vector form of Biot-Savart's law. ये 1 मार्क गिरता है क्वेश्चन. What is the vector form of Biot-Savart's law? तो k I dl cross r by r cube. Now this is what dl cross r. Remember, you can put cross product rule also here. You can put cross product. Right hand thumb rule को use कर पाओगे. dl में right hand रखोगे, towards r के तरफ घुमाओगे, and the thumb gives about dv. अरे समझ में? db को क्रॉस प्रोडक्ट में भी निकाल सकते हो राइट हैंड थंब रूल यूज करके. वाह, मैंने बताया था व्हाट राइट हैंड थंब रूल, वो उसी का डाल सकते हो. राइट हैंड थंब रूल क्रॉस प्रोडक्ट का भी डाल सकते हो db के लिए. राइट हैंड थंब रूल कैसे डालोगे? यू हैव टू पुट योर राइट हैंड ऑन dl and just curl your fingers along r, then the thumb gives about what db. Same जो राइट हैंड थंब रूल में जो निकाले थे, you have to hold the conductor in right hand such that thumb points for direction of current and the direction of curled fingers gives about the direction of magnetic field. That rule is same as right what cross product rule. क्रॉस प्रोडक्ट अगर अप्लाई करोगे राइट हैंड थंब रूल में, जो डायरेक्शन मिलेगा उसी में भी वही डायरेक्शन मिलेगा, इसलिए नो प्रॉब्लम विल बी देयर. समझ में? लिख दिए? लिख Yes, दिए sir. ना? ओके. वाह, अभी जो एप्लीकेशन करेंगे, ये एप्लीकेशन फर्स्ट एप्लीकेशन is not in your CBSE syllabus. Clear? But I will tell you that second application is there because the first application Ampere circuital law में डाल दिया वो कोविड सिलेबस में, बट सब पढ़ेंगे अभी. ओके, लिखो एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ. राइट डाउन एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ. लिखो एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ. एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ. Biot-Savart's law. Application of Biot-Savart's law. The first application is not in your course. Clear? Derivation नहीं है, but problem है. इसका derivation नहीं है, इसका derivation Ampere circuital law में डाल दिया, but इसमें भी derivation हो सकता है इसका. But try to understand this derivation. Write down magnetic field due to heading लिखो first application. Magnetic field due to an infinite straight conductor, straight conductor carrying current. ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा, इसका याद दिला रहा है मुझे. किसका? मैं जो लिखा कुछ याद आ रहा है मुझे. किसका याद आ रहा है? बोलो. Application of Gauss law. Gauss law. Magnetic electric field due to an infinite straight conductor by using Gauss law. हुआ कि नहीं? बट वो सिमिलरिटी नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है, बट राइटिंग में सिमिलरिटी हो गया. हेडिंग में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट क्या है? लेट्स सी दिस. रोहन आजकल पढ़ने लगे. वेरी गुड. Sir, this is the first application. Yes, first application that is not in your course. Clear? पर स्कूल कुछ स्कूल दे देता है, बट बोर्ड नहीं देगा. ये एप्लीकेशन को हटा दिया, ये एप्लीकेशन को एम्पियर सर्किटल लॉ में डाल दिया. नेक्स्ट स्टेप में है, इसी के बाद है. वाह, दिस इज फाइनाइट कंडक्टर आई एम टेकिंग. लेट्स अ फाइनाइट कंडक्टर इज टेकिंग. फाइनाइट कंडक्टर है, तो इसमें करंट व्हाट? करंट I current is what? Flowing along this direction. I current is flowing. I have to find out magnetic field at P point. Here I want to find out magnetic field at P point. तो मुझे बताओ ये जो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट में इनटू द पेज जाएगा या आउट ऑफ द पेज जाएगा? बोलो जल्दी. अरे इनटू द पेज होगा या आउट ऑफ द पेज होगा? बोलो. अरे क्या होगा P पॉइंट में? है बोलो क्या? हेलो. Say into the Into page. cross. into the cross. Are you sure? Can I write cross here? Cross लिखेंगे तो? Yes. Hello. Yes. This is what? Into the page here. This magnetic field due to this is what? Into the page. That is what? Cross. क्यों? Right hand thumb rule डालोगे तो this is what dB मिलेगा. And यहाँ पे circuit element कौन सा होगा? Let DL be the small circuit element I am taking here. DL be the small circuit element. DL very small circuit element.
due to this dl, magnetic field at p point, magnetic field at p point is into the phase. Due to this, magnetic field at p point is what? Into the phase. p point में magnetic field into the phase है dl के लिए. And this is, let this angle is theta, let this angle is theta, which one? This angle is theta and this angle is phi. This angle is phi. इसके लिए into the phase जा रहा है. And current तो आ ही जा रहा है इसमें. तो लिखो क्या क्या दिया गया है. ये a दिया गया है. This is what a, distance है. This is x. लिखो, डायग्राम ड्रॉ करो. This is x. एंड ये जो डिस्टेंस देख रहे हो ये l है. ये डिस्टेंस स्मॉल l है. यहीं से यहीं तक स्मॉल l है. दिस इज o, दिस इज व्हाट a, p. o is small l, o to a is small l, o to a is small l, and this is what a and this is what x. वाह, this is what x. ड्रॉ करो डायग्राम, अच्छी तरह ड्रॉ करो. ड्रॉ दिस. यस, ओके. ड्रॉ हो गया तो ये खोलो, तो ये खोलो. लिख दिए. देखो, व्हाट इज दिस हियर? लुक हियर, फिर से बोल रहा हूँ. इक्वेशन 1, k आइडियल sin थीटा बाय x स्क्वायर, इसमें a sec स्क्वायर फाई d फाई cos फाई बाय a sec फाई का होल स्क्वायर पूरा डाला मैंने. इसको सॉल्व किया तो सिंगल इक्वेशन, अभी सिंगल वेरिएबल इज cos फाई d फाई. Now I have to find out total magnetic field of this what? Of this finite what? Conductor. When you will say that the conductor is finite, अरे ये कंडक्टर का लेंथ यहीं से यहीं तक है. ये जो लेंथ है, I have to convert this length into angles. एंगल में कैसे कन्वर्ट करना है? अगर मैं एंगल में इसको कन्वर्ट करूं, ये लेंथ को एंगल में, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल यहीं पे, ये एंगल यहीं पे. तो मैं इसको लिखूंगा, ये एंगल को अभी लिखूंगा. ये जो एंगल मैंने दिया, ये एंगल को लिखूंगा फाई 1. ये सपोज फाई 1, तो ये क्या होगा? फाई 2. तो फाइनाइट हो गया ना. अगर मैं फाई 1 एंड फाई 2 ऐसे अगर दिखा दिया, तो ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है, ये फाइनाइट लेंथ हो गया कि नहीं? प्रीतिपाल, हेलो प्रीतिपाल, सुन रहा है? प्रीतिपाल, ओके. तो ये पे फाई 1 दिया तुमको मिलेगा या नहीं, गिवन होगा कि नहीं हुआ? इट डिपेंड्स ऑन दिस लेंथ. ये अगर लेंथ देगा तुमको, तो इजीली यू कैन कन्वर्ट इनटू फाई 1 एंड फाई 2. फाई 1 जितना ज्यादा होगा, देखो फाई 1 को मैं और बढ़ा दूं, फाई 1 को और बढ़ा दूं, तो क्या होगा? लेंथ और बढ़ेगा. अरे फाई 1 अगर बढ़ा दिया मैंने, तो लेंथ क्या होगा? लेंथ और बढ़ेगा ना. देखो, और लेंथ बढ़ेगा ना. समझ में? ये फाई 1 फाई 2 जितना बढ़ेगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर उतना बढ़ेगा. देयरफॉर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जब भी हम लेंथ ऑफ द कंडक्टर के बारे में सोच रहे हैं, तो दैट डिपेंड्स ऑन दिस फाई एंड दिस फाई, दिस फाई 1 and फाई 2. Understand this? Not this theta, not on this theta. Therefore, I have converted all this into this phi, phi 1 and phi 2. Is that clear? अभी समझ में है या फिर कुछ क्वेश्चन है? बोलो. अरे कुछ क्वेश्चन है प्रीतिपाल? अरे और किसी का कुछ क्वेश्चन है? सर फिर से बोल दीजिए, समझ में. जी, देखो समझ में. देखो, अगर ये कंडक्टर का लेंथ जितना जितना बढ़ेगा, कंडक्टर का लेंथ बढ़ रहा है, मतलब ये फाई 1 ये फाई 2 बढ़ेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे तुम्हारा कंडक्टर का लेंथ बढ़ रहा है, मतलब फाई 1 फाई 2 बढ़ेगा कि नहीं? कंडक्टर का लेंथ मैं और बढ़ाऊंगा यहीं पे, तो ये जो एंगल है और बढ़ेगा, ये जो एंगल है और बढ़ेगा, फाई 1 फाई 2 बढ़ेगा. समझ में आ रहा है? कंडक्टर का लेंथ बढ़ रहा है, मतलब ये जो एंगल बढ़ रहा है. समझ में आ रहा है? किसका डाउट था? सुदीप्ता, तुम्हारा डाउट था सुदीप्ता? यस सर. ओके, समझ में है कि नहीं? अरे एक कंडक्टर है, अगर इसका ये फाइनाइट लेंथ है, तो ये फाइनाइट लेंथ है फाई 1 फाई 2 हुआ. अगर कंडक्टर का लेंथ और बढ़ाओगे, तो डेफिनेटली क्या होगा? ये फाई 1 फाई 2 और बढ़ेगा, ये फाई 1 फाई 2 और बढ़ेगा, ये लेंथ और बढ़ रहा है, मतलब ये फाई 1 फाई 2 और बढ़ेगा. समझ में आ रहा है सुदीप्ता? हेलो यस. हेलो, समझ में आ रहा है? इसको तो फाइनाइट लिया था ना. क्या बोला? बोला ये फाइनाइट मैंने लिया, इसलिए फाई 1 फाई 2 लिखा. अरे मैंने फाइनाइट लिया था, इसलिए मैंने क्या लिखा? फाई 1 फाई 2 लिखा कि नहीं? अंडरस्टैंड दिस और नॉट? अरे फाइनाइट कंडक्टर लिया मैंने, मतलब फाई 1 फाई 2 भी क्या है? फाइनाइट है. फाई 1 फाई 2 दिया गया, मतलब फाइनाइट है. समझ में आ रहा है सुदीप्ता? यस हेलो, सर, समझ. हाँ, इसलिए
इसका अभी टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे एंड अभी phi1 phi2 तक व्हाट इंटीग्रेशन साइन देंगे। वह लिखो, thus the total magnetic field due to finite conductor, लिखो total magnetic field for the finite conductor, for finite conductor is what, how much integration of this dv, integration of ki what cos phi d phi divided by a, इंटीग्रेशन क्या करूंगा 0 to b, now phi1 to phi2, देखो ये पे साइन कन्वेंशन मुझे देना है phi1 to phi2। वह मैथमेटिक्स में साइन कन्वेंशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव होता है साइन कन्वेंशन एंड क्लॉकवाइज एंगल के लिए नेगेटिव होता है मैथ्स में साइन कन्वेंशन। वह तो एक को मैं अगर नेगेटिव दिया phi2 होगा पॉजिटिव, क्यों, बिकॉज एक एंगल देखो, एक एंगल जो मेजरमेंट कर रहा हूं, ये जो एक एंगल होगा इस साइड जाएगा, एक एंगल क्लॉकवाइज जाएगा, क्लॉकवाइज इज टेकन एज नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज इज टेकन एज पॉजिटिव। एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो जो एंटी क्लॉकवाइज मैंने phi2 लिख लिया, इसको phi2 लिख लिया, इसको phi1 लिख लिया, समझ में है कि नहीं। तो साइन कन्वेंशन देना है मुझे एंगल का, तो एंटी क्लॉकवाइज साइन इज ऑलवेज टेकन एज, एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव and clockwise angle is always taken as negative. Is it clear? Therefore I have to give the sign convention of this angle minus phi1 and plus phi2। समझ में क्लियर हुआ। इसमें अगर कंफ्यूजन हो रहे तो लिख लो रीजन, राइट डाउन phi2 is positive for clockwise direction, is positive for clockwise direction लिखो, and phi1 is negative for anti clockwise direction, for anti गलत लिख दिया phi2, हाँ सही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये रफली लिख सकते हो। जहां पे क्लॉकवाइज होगा, गलत लिख दिया क्या, अरे क्लॉकवाइज नेगेटिव ना, क्या करता हूं, एक मिनट लिखो रुको, phi2 is positive for anti clockwise direction, for anti clockwise angle is always positive ना मैथ्स में, अरे जो इधर मेजरमेंट किया जाता है वो हमेशा पॉजिटिव है, इधर एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, लिखो phi1 is negative for clockwise direction लिखो, for clockwise direction ये रफली लिख सकते हो, वाह, because two angles you have to measure for the finite length, you have to measure two lengths, one is clockwise another is anti clockwise। समझ में क्लियर हुआ, क्या डाउट है, हेलो, अरे क्लियर हुआ ना एंगल के बारे में, किसका डाउट है, नहीं है, डाउट है किसी का, कुछ क्वेश्चन पूछना है, नहीं है, ओके इसको सॉल्व करते हैं अभी। नाउ सॉल्व इट, इसमें कांस्टेंट कौन है, के आई व्हाट बाय ए कांस्टेंट cos phi d phi, इसका इंटीग्रेशन है minus phi1 to plus phi2 and this is what db का इंटीग्रेशन 0 to b, db का इंटीग्रेशन क्या है b and this is what 0 to b, this is what k I by a, cos phi का इंटीग्रेशन क्या है बोलो, अरे cos phi का प्रतीक बोलो, प्रतीक, अरे cos phi तो बोलो, फाल्गुनी cos phi का क्या इंटीग्रेशन, वीक इन मैथ्स बोलो जल्दी, हेलो, अरे सुनाई दे रहा है, हेलो, यस सर। ओके नाउ cos phi का इंटीग्रेशन क्या है, cos phi का इंटीग्रेशन बोलो क्या है, दिस इज व्हाट, अरे cos phi का क्या है sin phi, अरे क्या, ये sin phi minus phi1 to phi2, now just write down upper limit minus lower limit, write down b is equal k I by a, this is what sin phi2 minus sin minus phi1, means this is what with sign convention we are getting k I by a, this is what sin phi2 plus sin phi1, very important one, very important one, this is the magnetic field for finite conductor। ये प्रॉब्लम में गिरता है एंट्रेंस में, सीबीएसई नहीं देता है बट ये एंट्रेंस में गिरता है, ये एक्सप्रेशन sin phi1 plus sin phi2 विद साइन कन्वेंशन, और तुमको साइन कन्वेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधा डालोगे,
ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों के लिए है, इसलिए दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। हुआ ki by a into sin phi 1 plus sin phi 2, ki by a into sin phi 1 phi 2. अंडरस्टैंड दिस? समझ में आ रहा है? अरे क्लियर हुआ सभी का? Yes. क्लियर हुआ ना? नाउ यू सी इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर लिखा गया है। इनफाइनाइट मतलब phi 1 phi 2 कितना होगा बोलो? अगर मैं बोलूं ये ये स्ट्रेट कंडक्टर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट मतलब ये इंक्रीज होते 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 ये कहां तक जाएगा? अरे ये फाइव बढ़ेगा, अरे दोनों साइड बढ़ेगा, इस साइड भी बढ़ेगा, अरे इस साइड भी क्या है, इस साइड भी बढ़ेगा, इस साइड भी बढ़ेगा, मतलब ये फाइव इंक्रीज होता जाएगा। कहां तक इंक्रीज होगा ये फाइव 1 फाइव 2? अगर मैं बोलूं ये इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है, द कंडक्टर इज इनफाइनाइट, तो व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ फाइव 1 एंड फाइव 2? कोई बोल पाएगा? Spandan, if this conductor is infinite length, then what is the value of phi 1 and phi 2? कितना है देवी प्रसाद बोलो? phi 1 phi 2 कितना होगा? अरे कितना होगा श्वेता? Less Hello? than 90 degree. Less than 90. श्वेता कितना आएगा? श्वेता सुन पा रहे हो? 180 रोहन। phi 1 कितना होगा? phi 2 कितना होगा बोलो? इंडिविजुअली बोलो। रोहन, phi 1 कितना होगा? phi 2 कितना होगा? श्वेता बोलो। हेलो श्वेता, सुनाई दे रहा है? सर अगर हम इनफाइनाइट बढ़ेंगे हाँ ये इनफाइनाइट है, ये स्ट्रेट कंडक्टर इनफाइनाइट होगा, ये भी ये पूरा इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर होगा। अगर स्ट्रेट कंडक्टर तुम्हारा इनफाइनाइट हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है स्ट्रेट कंडक्टर, तो व्हाट शुड बी दैट phi 1 एंड phi 2? ये जो मेरा phi 1 phi 2 है, इसका वैल्यू कितना होगा? कितना होगा phi 1 5 by 2 phi by 2? अरे श्योर? क्या क्या बोलो दीदी पर कुछ बोल रही थी? अरे बोलो दीदी पर। Sir, 89 degree. 89 डिग्री, नॉट 90। Sir, 90 होगा तो 90 डिग्री parallel होगा। है। यस पैरेलल, दो पैरेलल लाइन विल मीट ईच अदर एट इंफिनिटी ना। अरे इसको पैरेलल करोगे, ये 90 होगा, इसमें भी 90 होगा, तभी जाके इसको डिफाइन कर पाएंगे दिस स्ट्रेट लाइन इज व्हाट? इनफाइनाइट। अरे स्ट्रेट लाइन विल बी एट इनफाइनाइट मींस व्हाट? बोथ phi 1 एंड phi 2 शुड बी व्हाट? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? बिकॉज 90 डिग्री होने से दो पैरेलल लाइन कहां पे मीट करेंगे? इनफाइनाइट में। अरे ये डिफाइन कर दिया ना, ये स्टेट कंडक्टर इनफाइनाइट में जाके इनफाइनाइट तक है, मतलब ये phi 1 90 होगा, phi 2 भी क्या होगा? 90 होगा। अरे phi 1 90 होगा, phi 2 भी 90 होगा, तभी जाके इसको डिफाइन कर पाएंगे दिस स्ट्रेट लाइन इज व्हाट? दिस इज स्ट्रेट कंडक्टर इज एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सभी को या फिर डाउट है? अरे समझ में ये किसका डाउट है? रोहन समझ में है? नॉट 180, अरे दोनों को मिला के 180 है रोहन। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ Yes, sir. समझ में आ रहा है? दोनों को मिला के 180, बट एक एक एंगल कितना होगा? 90 का। 90 होने से क्या होगा? ये 90 में कहाँ पे मिलेगा? दोनों पैरेलल हो गया, दिस टू पैरेलल लाइन विल बी व्हाट? दे विल मीट ईच अदर एट इंफिनिटी, तो इसका डेफिनेशन इंफिनिटी तक हो गया उसका मतलब। समझ में आ रहा है प्रीतिपाल? 89 क्यों नहीं है प्रीतिपाल? Yes, sir. ओके लिखो फॉर इनफाइनाइट नाउ सर राइट डाउन। मैंने इसलिए से 180 by 2 बोला था हाँ सो 180 5 by 90 2 90 ना सुनाई दिया, 90 सुनाई दिया, यस यू आर करेक्ट, 90 बोला था, यू आर करेक्ट। लिखो फॉर इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर, राइट डाउन, फॉर इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर क्या है? लिखो इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर, कंडक्टर phi 1 is equal phi 2, that is what? Pi by 2. Therefore magnetic field due to infinite state conductor कितना आएगा? Ki by a, this is what? Sin pi by 2 plus sin pi by 2, that is how much we're getting? So B is equal Ki by a into 2, or magnetic field is your 2Ki by a, 2Ki by a. This is what the magnetic field due to infinite state conductor, 2Ki by a, where K is what? In SI, K का वैल्यू क्या है? In SI K is mu naught by 4 pi, mu naught by 4 pi or 10 to the power minus 7. -7 Yes, हो गया? समझ में आया सभी को?
ये डेरिवेशन नहीं है, इसी में था लास्ट ईयर ही हटा दिया इसको, बट एंट्रेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट इसका प्रॉब्लम देता है वो हुआ, समझ में आया? इससे पहले हटाया था, लास्ट ईयर नहीं, उससे पहले हटाया था, बट प्रॉब्लम दिया था इसी का। लास्ट ईयर तो एग्जाम ही नहीं हुआ। अच्छा है, हुआ के का यूनिट क्या होगा? के का यूनिट, हाँ